So welcome back to my channel. This is C. Radhika Garg. So in this session we are going to discuss about the part first of the Indian Constitution. So before starting the session, let's read the screen. Quote, we lose interest in movies or TV series in which good characters are always good and bad ones are always bad. This does not match up to reality. No person is always good or bad. So what we learned, I want to give a lesson from this, that whatever suits you or your goals, just go ahead with that. Even if you have to say no to even those persons who are closest to you, you must say no to that. Say no to all those things which become an obstacle for achieving your goal. So study hard, work hard to become a chartered accountant. So let's start the session. I hope my screen is visible to you all. So in this session we are going to discuss the part first of Indian Constitution. Okay. The part first of Indian Constitution says the union and its territory. यानी भारत क्या है और भारत में क्या क्या आता है. भारत में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी क्या आता है. It comprises of 4 articles. Article number 1 says about the name and the territory of the union. Article number 2 states about the admission and establishment of new states. Article 3 states about formation of new states and establishment of an alteration of state boundaries or names of the existing states. 4.1 laws made under the Article 2 and 3 provided for the amendment regarding to the 4th and 1st schedule and supplementary incident. These are the 4 articles we are going to discuss in this, and their relative other things are also around sound. First read the articles. First, the article number 1. Okay, I hope my screen is visible to you. First, the article 1. Name and the territory of India. Name, किस नाम से हम भारत को जानते हैं. इंडिया कहेंगे या भारत का. व्हाट इज नेम? इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया कहेंगे या तो हम उसे, या हम भारत कहेंगे. तो इंडिया जो है वो पॉलिटिकल यूनिट नेम है उसका, एंड भारत जो सिविलाइजेशन नेम है, सिविलाइजेशन यूनिट, जो कि एंशिएंट टाइम से हम इसको हिंदुस्तान, भारत कहते आ रहे हैं. तो हम there is a debate in the Constitution Assembly when the Constituent Assembly is an assembly in which the entire Constitution has been framed. There is a lot of Constitution has been made in that. तो वहाँ जब Constitutional Assembly में डिबेट हो रही थी तो सब कह रहे थे कि भाई इंडिया रखा जाए नाम या भारत रखा जाए. तो some people are in favor of the Indian name suggested, and some are in favor of Bharat. But they all concluded to keep both of the names in the constitution. So either we called India or Bharat, that is okay with that. It shall be a union of state. Union of state है. हम इंडिया क्या है? Union of state. Second, the territories and the states thereof shall be specified. वो सारी की सारी states, वो सारी territories जो कि specified की गई कौन से schedule में, फर्स्ट schedule में लिखी गई, वो सारी की सारी किस में आएंगी? यूनियन का पार्ट बनेंगी. What do you mean by territory of a state? Territory of India, sorry, pardon me for that. Territory of India. Territory of India में क्या क्या आता है? What shall comprise the territories of the state? The union territories specified की गई जो फर्स्ट शेड्यूल में. एंड थर्ड, एनी टेरिटरी एज मे बी एक्वायर. जो टेरिटरी कोई एक्वायर कर ली जाएगी वो टेरिटरी भी इसके अंदर आती है. तो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, यूनियन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. Let me add a page over there. Okay. The word union of state. Union है किसका? स्टेट का. For understanding of this concept, we need to understand the 3 terms. The concept of federation, the concept of federation, true federation, concept of confederation, concept of the union federation.
Let's start with understanding this. True federation, confederation and union federation. Okay. India is a union of federation because first we need to what is the term federation mean. The term federation means when the states, when the provinces or the state, the जो territories हैं अलग अलग छोटे छोटे territories जब मिलकर के एक यूनियन बना लेती हैं फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द फेडरेशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसे यूनाइटेड स्टेट क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टेट्स थे अलग अलग, उन सब ने एक अग्रीमेंट में साइन किया है एंड दे बिकम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू मेक अ होल एंटायर कंट्री. बट इंडिया के केस में क्या है? इंडिया में डिफरेंट से मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, दीज स्टेट डू नॉट कम इन टू एन अग्रीमेंट, दे डू नॉट एंटर इन टू एन अग्रीमेंट टू फॉर्म अ फेडरेशन. वो किसी अग्रीमेंट के तहत यूनियन के अंदर में नहीं आए हैं, यहाँ उन्होंने किसी अग्रीमेंट नहीं किया है किस चीज़ को, इंडिया को बनाने में. दे आर द क्रूशियल और एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडिया के पार्ट पहले से थे. ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फेडरेशन एंड यूनियन फेडरेशन. इन ट्रू फेडरेशन द लार्जर यूनिट, द इंटायर यूनिट, द यूनिट विच है द सेंट्रल यूनिट जो कि बनी है आपकी मिलकर के, वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है एंड द स्मॉलर यूनिट जिन्होंने अग्रीमेंट किया है उसको बनाने के, दैट आर ऑल्सो बीन इनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर. बोथ आर indestructible. Why? When we are comparing to the Union Federation, which India is a country, the Union Federation in which the states are जो small states or smaller unit that are destructible in nature. Destructible in it means that the boundaries, their name, their alteration can be changed and can be altered time to time as per the administration need or various other factors, on the basis of various other factors. But the major unit of the central unit which cannot be changed or that cannot be destruct, that is also indestructible in nature. What do you mean by confederation? Confederation where the smaller states come together, जितने भी smaller units होती हैं सब come together to form a confederation, to form a union. For example, we can say that is a form of union. For example, European Union. In European Union, where जितनी भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, ये all of these states or the countries form a union, that is European Union बनाया है उन्होंने. That it means the larger unit in this is destructible. If any country want to get out from this unit, they can easily get out. Just like you can understand that कि भाई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, तो वही 4-5 फ्रेंड्स ने मिलके कलेक्शन किया है, उसमें से अगर किसी एक फ्रेंड को बाहर निकलना है, दैट ही इज़ ओके कि भाई मुझे पार्टी में नहीं आना और मेरे को भी कंट्रोल नहीं करना है, तो ही कैन गो. इट इज़ जस्ट लाइक दैट यूरोपियन यूनियन. और कॉन्फेडरेशन में भी यही होता है कि अगर कोई स्मॉलर स्टेट है वो अगर अपनी विश से, विलफुल विश से यू वांट टू ज्वाइन, यू अलाउड टू ज्वाइन इट, और इफ़ यू डोंट देन ओके, यू आर नॉट फोर्स टू डू दैट. द larger unit is destructible in nature, but smaller unit is not a smaller unit, it is not should be destructible. So let's make a chart for this so you can easily understand that. Here I term this 1, 2 and 3. Okay, I will write it. Yeah. True federation. Here confederation. And the last one is union federation. Here in this larger unit, smaller unit, example. Okay,
In true federation, the larger unit is indestructible in nature. That cannot be destructed. Indestructible. Indestructible. Smaller unit is also indestructible in nature. For example, United States of America. Okay, here one question also being asked by raised or get come into in your mind, that is कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स के जो स्टेट हैं अगर वो दोनों ही जो स्टेट्स हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है, तो क्या जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट का, फॉर एग्जाम्पल, क्या वो जो है वो सिसीड कर सकता है, अपने आप को यूनाइटेड स्टेट से अलग स्टेट डिक्लेयर कर सकता है? नो। यूनाइटेड स्टेट्स में ये क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया गया था, तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट स्टेट्स डज नॉट हैव, हाँ स्टेट्स, ये बात सच है कि स्टेट्स अग्रीमेंट में एंटर हुए हैं तब जाके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है, बट लेकिन इन दिस केस दिस टू स्टेट्स डज नॉट हैव दैट पावर टू कि वो अपने आप को, अपनी टेरिटरी को यूनाइटेड स्टेट्स से सिसीड कर लें या अलग कर लें. ओके, इन कॉन्फेडरेशन दिस इज डिस्ट्रक्टेबल, लार्जर यूनिट इज डिस्ट्रक्टेबल, क्योंकि ये इट इज़ अ विश, इट इज़ फॉर्म ऑन द विश ऑफ द पीपल और द विश ऑफ द कंट्री. का जो भी स्मॉलर यूनिट्स है उनकी विश पर, उनकी विलफुल उस पर बनी, उनकी चॉइसेस पर, उनके वॉल्यूशंस पे बनी हुई है. एंड दिस इज इंडिस्ट्रक्टेबल. ये आपकी इंडिस्ट्रक्टेबल होती है. ओके, यहाँ आपकी ये डिस्ट्रक्टेबल है एंड दिस वन इंडिस्ट्रक्टेबल. ओके, इनके एग्जाम्पल्स आई विल कोट इट. यूरोपियन यूनियन एंड द इंडिया. ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल. I hope you understand this concept. Now we get back to our own article. Here the word united union of state, यानी स्टेट की सहमति, यानी हमने जो स्टेट्स बनाया है इंडिया क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है. फेडरेशन, वो भी ट्रू फेडरेशन नहीं है. इंडिया इज अ क्वासी फेडरेशन. इट मीन्स कि जो पावर हैं वो पावर्स जो है सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड की गई हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली पावर एलोकेट की गई है. सेंटर की क्या पावर होंगी, स्टेट की क्या पावर होंगी, और जिसमें कि जो मोस्ट पावर्स है वो टिल्टेड किस टुवर्ड्स है, सेंटर की तरफ टिल्टेड है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द क्वासी फेडरल स्टेट के नाम से जाना जाता है. तो यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट्स आते हैं, कंप्राइज स्टेट्स ऑफ इंडिया को, और इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट या क्वासी फेडरल के नाम से जाना जाता है इसे. ठीक है, क्योंकि इन लेटर आर्टिकल्स वी विल डिस्कस कि व्हाई दिस टर्म हैज बीन यूज्ड इन फॉर आवर कंट्री क्वासी फेडरल, व्हाई द फेडरेशन इज नॉट यूज. तो वी विल अंडरस्टैंड इन फर्दर आर्टिकल्स. तो फॉर दिस यू शुड रिमेंबर दिस वर्ड कि वही क्वासी फेडरल स्टेट है, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेटेड पावर्स है हमारी यूनियन में और स्टेट में. तो और जो ज़्यादातर पावर्स है वो टिल्टेड है टुवर्ड सेंटर की तरफ. तो फॉर एग्जांपल जैसे आप कह सकते हो इमरजेंसी पावर्स जो हैं आपकी, अगर कोई भी लॉज ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे लॉ सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, अगर किसी भी तरीके की रिपग्नेंसी है उन लॉज के अंदर में, देन द सेंट्रल लॉज विल हैव द मोर पावर और सेंट्रल लॉज विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉज. तो इन दैट केस दैट्स वाई द हमारे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे और हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स को क्या कहा, क्वासी फेडरल का. द टर्म टेरिटरी इज अ वाइडर टर्म विच कंप्राइजेज थ्री थिंग्स. फर्स्ट स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, एंड थर्ड वन द एंड ऑल दोज टेरिटरी विच हैज बीन एक्वायर्ड, है ना, दैट इज the term this include. तो you should be remember this because in MCQs they will ask you about कि भाई टेरिटरी ऑफ स्टेट में क्या क्या आता है, यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, और नेम में क्या इंडिया भारत दोनों कहा गया, दैट इज. तो यू शुड बी कंसिडर दिस पॉइंट. सेकेंड आर्टिकल, वी विल कम टू सेकेंड आर्टिकल, दैट इज एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट का. कि आप किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकते हो और एस्टेब्लिश कर सकते हो, दोनों ही आप नए स्टेट को कर सकते हो. इसके अंदर बताएगा पार्लियामेंट किसी भी लॉ बना करके अपना एडमिट कर सकती है किसी भी स्टेट को यूनियन के अंदर में, और एस्टेब्लिश कर सकती है नए स्टेट को इसके अंदर. सो नाउ हियर द ट्रैप क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू. चलो
इसको बाद में पूछेंगे क्योंकि आई विल डिस्कस द थर्ड आर्टिकल एज वेल, देन आफ्टर वी विल डिस्कस थर्ड आर्टिकल इज formation of new state in alteration of areas, boundaries and name of the existing state. Should be keep that mind in existing state को ध्यान रखेंगे आप इसमें वर्ड एग्जिस्टिंग स्टेट को। जो सेकंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल में डिफरेंस ये, सेकंड में हमें न्यू स्टेट्स के बारे में बताता है कि कोई भी नए स्टेट को बाहर से ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और थर्ड आर्टिकल आपको कह रहा है एग्जिस्टिंग स्टेट में ही हम चेंजेस कर रहे हैं। ओके तो इसमें क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट किसी लॉ बना करके, पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करें, फॉर्म नया स्टेट बना सकता है। दो स्टेट को सेपरेशन ऑफ टेरिटरी को किसी भी स्टेट से अलग करके उसके टेरिटरी को, जैसे मान लो यूपी को दो उसमें ब्रेकआउट कर दिया गया, दो स्टेट बने, यूपी ईस्ट यूपी और वेस्ट यूपी बना दिया फॉर एग्जांपल लेट्स से, या दो से ज़्यादा स्टेट्स को और या कुछ पार्ट ऑफ स्टेट्स को एड अप करके एक स्टेट बना देते। फॉर एग्जाम्पल आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग कर दिया गया है। सेम गोज विद जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को हटा करके 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दी गई हैं। ओके इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी एरिया को, स्टेट के डिमिनिश कर सकते हैं उसके एरिया को, और ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज को इफ़ नेसेसरी, एंड द ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट एज वेल। अब भाई ये सब काम हम कर सकते हैं, तो अगर इसको रिमाइंड करना हो तो इसका हिंट है दिस फिदा, आप इससे याद कर सकते हैं, दैट इज़ द हिंट। फॉर्म कर सकते हैं हम, फॉर्म इंक्रीज डिक्रीज ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज को और नेम को। ओके नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि इसको करने के लिए। प्रोसीजर ये है, किसी भी, पहले तो हम बिल का प्रोसीजर पढ़ते हैं, किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए पार्लियामेंट में उसका इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है, इधर लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी किसी में भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जिसमें भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसमें उसकी वोटिंग होगी, वोटिंग के प्रोसीजर से डिफरेंट तो वोटिंग होगी, उसमें पास हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, देन इट हैज़ बीन पास्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, देन द बिल हैज़ बीन कम इनटू द राज्यसभा, द राज्यसभा ऑल द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा शुड हैव बीन आल्सो गिवन अ असेंट। So both the houses when give the assent, after that it will be present in front of the president. When the president also assent that, then the bill becomes an act. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बिल को एक्ट बनने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। ओके आई होप इट इज़ बीन क्लियर टू यू दैट द बिल हैज़ बीन ईदर ऑफ द प्रेजेंट इन ईदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में प्रेजेंट होने उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उसके इंट्रोडक्शन के बाद इट हैज़ बीन असेंटेड बाय बोथ ऑफ द हाउसेज, देन इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, एंड आफ्टर द प्रेसिडेंट शुड हैव बीन गिवन हिज असेंट, देन इट शुड बिकम एन एक्ट। सो if we want to change, alter the boundaries of the state or the name of the state, then we have to introduce the bill. तो किसके रिकमेंडेशन पे बिल इंट्रोड्यूस, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, दैट हैज़ बीन ऑल्सो मैंशनड इन द आर्टिकल 3 में मैंशन है। क्या है देखें, प्रोवाइडेड नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन द ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा किसी भी हाउस में until unless president has given his recommendation for that particular purpose, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की किसी अगर रिकमेंडेशन नहीं होगी तब तक आप उसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वेदर प्रपोजल कंटेन इन द बिल अफेक्ट्स कर रहा हो किसी भी चीज़ को, एरिया को, बाउंड्रीज को, उसके नेम को, स्टेट के, आफ्टर हैज़ बीन रिकमेंडेशन, उसको इंट्रोडक्शन के बाद प्रेसिडेंट उसे स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे, जिस रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर जिसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जा रहा है, एरिया को, नेम को चेंज किया जा रहा है, उसके अंदर द स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो अपना रिकमेंडेशंस, जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो सेंड की जाएंगी प्रेसिडेंट को विद इन टाइम फ्रेम के अंदर जो बताया जाएगा, या इफ द टाइम हैज़ बीन एक्सपायर तो फिर प्रेसिडेंट उसे मान ले, वट एवर इट इज़ द टाइम फ्रेम जो भी डिस्क्राइब किया गया उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको वापस करना है उसको अपनी रिकमेंडेशन देने के बाद, देन इट हैज़ बीन फॉलो द रेस्पेक्टिव प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट का रेस्पेक्टिव प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके अंदर। हियर द कैच इज दैट और द ट्रैप इज दैट कि क्या रिकमेंडेशन जो स्टेट लेजिस्लेचर प्रपोज की करेगा इसके रिस्पेक्ट में वो बाइंडिंग होगी या नहीं, दैट हैज़ नॉट बीन बाइंडिंग इन नेचर में नहीं होंगी। जो भी रिकमेंडेशन स्टेट के द्वारा प्रेजेंट की जाएंगी इन फ्रंट ऑफ और इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट बिल के अकॉर्डिंग जो भी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं होंगी। ये बात आपको ध्यान रखना, नॉट अबाइडिंग, बस उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा है कि आपको बताओ, बाकी आपके कोई रिकमेंडेशंस के ऊपर अबाइडिंग नेचर का नहीं होगा।
इट इज़ जस्ट बीन गिवन फॉर द पर्पस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कि भाई तुम्हारी बाउंड्रीज चलो जस्ट गिव। अगर कोई और अच्छा आपके पास सोल्यूशन है इसके रिगार्डिंग में तो जस्ट फॉर दैट पर्पस, अदरवाइज द पार्लियामेंट हैज़ द अल्टीमेट पावर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। There has been two explanation also added to this article 3. First, A to E, that is has been form, increase, decrease, alter. We have read the state, the word state has been mentioned, include union territory as well. बट इन द प्रोवाइजो, यहाँ पर जब आपको बिल को, जो बिल रिकमेंडेशन का है प्रेसिडेंट के हुआ, वो जब स्टेट लेजिस्लेचर में देने की बात आ रही है ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को सेंड किया जाएगा रिकमेंडेशन, इन दैट केसेस यूनियन टेरिटरीज के केस में उसे सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यूनियन टेरिटरीज हैज़ बीन डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, तो इसलिए इट डज नॉट इंक्लूड दिस पार्ट ऑफ इट। जो प्रोवाइजो है वो इस पर नहीं अप्लाई होगा। I hope you get that. After that, the power conferred on the parliament by clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of the state or union territory or in clause A में यहाँ clause in this I will show you again तो so that it help you form a new state by separation of territory from state or union territory two or more state। अब यहाँ आपको एक डाउट हो सके भाई स्टेट ही तो लिखा है, यूनियन टेरिटरी को नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ऐड किया हुआ है उसमें मेंशन है कि स्टेट इंक्लूड्स इधर न्यू स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो या किसी स्टेट का कुछ पार्ट हो या कुछ यूनियन टेरिटरी का पार्ट हो, उसको भी चेंज किया जा सकता है। दैट यू नीड टू बी कंसिडर, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो जहाँ जहाँ टर्म स्टेट यूज़ किया गया है आपका, वहाँ उसका मतलब यूनियन टेरिटरी। द फोर्थ एंड द लास्ट वन, द लॉज मेड, जो भी लॉ मेड किए जाएंगे आर्टिकल 2 और 3 में, प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में, आपको रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे इनके रेस्पेक्टिव शेड्यूल में। शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल 4 के अंदर में आपको रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे एंड सप्लीमेंट्री एंड इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। यहाँ इसका ये जो क्लॉज है 2 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बताता है कि भाई वोटिंग होनी कैसे है, what kind of majority, special majority, simple majority, जो कि हम फॉर एग्जांपल वी हैव ऑल्सो बीन स्टडीड इन द कंपनीज लॉ में भी हम पढ़ते हैं कि भाई डायरेक्टरों में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, या स्पेशल बिजनेस पास, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेसेस में किस टाइप की मेजोरिटी हमें चाहिए। दैट इज इसमें तो इसमें यहाँ बताया नो सच लॉ इज अफोर्डसेड शेल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 आई विल टेल यू ब्रीफ अबाउट इट। आर्टिकल 368 टेल्स अबाउट अमेंडमेंट, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन दैट आर्टिकल 368 में आपको बताया गया है, और इसका सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी किया सकता है, उस चीज़ को भी उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अब अगर यहाँ आर्टिकल 2 और 3 में कुछ अमेंडमेंट की जाती है जिसका इफेक्ट आपके फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल पे भी पड़ रहा है, तो इन दैट केस यू नीड नॉट टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 368 बिकॉज वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पेशल प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना होता है। तो हेयर वी कैन ओनली यूज बाय सिंपल मेजोरिटी और ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू आप इसको अमेंड कर सकते हैं। इसलिए कोई भी लॉ अगर इन वाले आर्टिकल्स में पार्ट 1 में चेंज किया जाएगा तो वो आर्टिकल 368 के चेंज का प्रोसीजर का पार्ट नहीं माना जाएगा, ना ही उसका प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। यू नीड नॉट टू बी abide by the procedure of Article 368. I hope you understand all these points. No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of the Constitution for this purpose of Article 368. I hope all these four articles of part 1 have been cleared and understood by you. So let me give a summary of that. Article 1, name and the territory of the union. Article 2, admission and establishment of the new state. And Article 3 talks about the existing states के अंदर changes के बारे में बताया. And Article 4 बताता है कि क्या procedure आपको follow करना होगा. Now my question, I will help you. I hope you get this now. अब let's discuss with this. क्या इंडिया की कोई टेरिटरी अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री को दे दूँ या फॉरेन टेरिटरी को दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव सम पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर कंट्री, मैं किसी को सिसीड करना दे दूँ, क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है? क्योंकि हमने दोनों आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा, आर्टिकल 2 और 3 में, 2 में हमने पढ़ा कि हम एडमिट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मैं ले तो सकती हूँ पर लेकिन क्या मैं सिसीड कर सकती हूँ, सरेंडर कर सकती हूँ अपनी टेरिटरी को? कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये तो बताता है कि मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ अपने लिए नई टेरिटरी को, क्या मैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेरिटरी को किसी को दे सकती हूँ? द क्वेश्चन इज हियर दिस। तो ये क्वेश्चन उठा पेरूबारी केस 1960 में। इस केस में ये था
कि एनक्लेव्स इशू केस था. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, हियर. Pardon me for any of this. It is a rough map. I just want to help you to understand a little bit. Next time I will arrange. Okay. The initial one is much better. Okay, let's go with that. Here, this is the India map. Now, it is a Bangladesh. Here you have seen Bangladesh. It is visible to you all, guys. Here's some of the enclaves. The word understand enclaves. एनक्लेव्स क्या होते हैं? एनक्लेव्स आर सम अदर टेरिटरीज. क्या होती हैं? जो किसी कंट्री की टेरिटरीज हैं, किसी और दूसरी कंट्री के अंदर में आती हैं, और उस कंट्री की टेरिटरीज हमारे अंदर हमारे कुछ एरियाज़ में आती हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ इंडिया कुछ की कुछ टेरिटरीज जो थी वो यहाँ, इंडिया की कुछ जो टेरिटरीज थी वो बांग्लादेश में आती, तो बांग्लादेश की टेरिटरीज कुछ इंडिया के आसपास आती थी. तो ये इशू था कि हम टेरिटरीज को क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें, कि भाई जो आपके एरिया में आती है वो आपको इंक्लूड कर लिया जाए और हमारे एरिया में वो हमारे पार्ट में इंक्लूड की जाए. तो ये इशू था इंडिया का. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 123 के अंडर कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेशन ले सकते हैं इफ़ इन सम केसेस, इफ़ अगर उन्हें रिक्वायर्ड है तो इन दैट रेस्पेक्ट में. तो उन्होंने कहा, ही आस्क्ड द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट कि इंडियन टेरिटरी क्या सिसीड की जा सकती है फॉरेन टेरिटरी को, क्या आर्टिकल 3 में ये पावर है? तो वी कैन से आर्टिकल 3 में को ये पावर नहीं देता है. आर्टिकल 3 आपको कि आप इंडियन टेरिटरीज को सिसीड कर दो किसी फॉरेन टेरिटरीज को. देयरफॉर नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 हैज़ बीन पास्ड फॉर दिस पर्पस कि हम जो भी टेरिटरीज हैं इंडिया की, हम उसके इस इशू को हम सेटल कर लें. For that purpose, in 1969, the Supreme Court has said that for that purpose, अगर किसी इस तरीके का टेरिटोरियल डिस्प्यूट आता है एक्सटर्नल टेरिटरीज के साथ में, तो in that case we do not need to be go with the we only need the executive actions की ज़रूरत होगी. हमें legislative procedure कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी. ये चीज़ उन्होंने कही क्योंकि एक्चुअली यहाँ इशू को लेट एक्सप्लेन इट इन अ फर्दर वे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल मेक अ चार्ट हुआ है. ओके, इसमें था इशू ये रेड क्लिफ इशू, रेड क्लिफ लाइन. बैगे अवार्ड एंड दैट नेहरू नून अग्रीमेंट. रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी व्हेन इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था. इन दैट द रेड क्लिफ लाइन हैज़ बीन ड्रॉन ऑन द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान. ओके, देखो, लेट मी सी, हेल्प यू टू. दिस इज़ द ईस्ट साइड ऑफ द पाकिस्तान. यहाँ एक लाइन ड्रॉ की गई थी, यहाँ ये जो बॉर्डर बनाए गए यहाँ, क्योंकि ये बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ था, पाकिस्तान ही कहा जाता था. बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई तब बांग्लादेश एक नई कंट्री बन के आया है. तो रेड क्लिफ लाइन थी. रेड क्लिफ इसलिए इसका लाइन है क्योंकि रेड क्लिफ द पर्सन हु हैज़ बीन वर्क अपॉन द एंटायर टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ दैट, द रेड क्लिफ ही उनका नेम था, दैट्स वाई. तो रेड क्लिफ. आफ्टर दैट द बैगे अवार्ड इज दैट जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन इंडियन टेरिटरीज एंड द बांग्लादेश टेरिटरीज रिगार्डिंग दैट द एनक्लेव्स. तो बैगे अवार्ड आया था. बैगे जो है वो स्वीडन के एक जज थे. वहाँ द थ्री बेंच जज थी ये, सॉरी 3 बेंच, हाँ 3 जज बेंच था ये. 3 जज बेंच में 1 जो थे स्वीडन से आए थे, सेकेंड वन आपके इंडियन थे एंड थर्ड वन इज़ द फ्रॉम पाकिस्तान साइड. तो दैट्स अ बैगे अवार्ड आया था
उसमें उन्होंने इसको रिजल्ट। इसके बाद नेहरू नून अग्रीमेंट भी होता है। नेहरू वॉज द PM एट द टाइम ऑफ द इंडियन एंड नून वॉज द PM ऑफ एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान। तो उनके बाद ये एग्रीमेंट आया था। तभी इस केस में इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे कि भाई क्या जो आर्टिकल 3 है क्या पावर देता है इंडिया के पार्लियामेंट को, क्या वो सिसीड कर सकता है कोई टेरिटरी टू द फॉरेन टेरिटरी। देयरफॉर इसलिए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 आया एंड एट दैट टाइम बेरूबारी केस इसी के ऊपर है। बेरूबारी केस जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि नहीं, आर्टिकल 3 के पास ये पावर नहीं है, पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देते कि वो किसी भी टेरिटरीज को सिसीड कर सके टू फॉरेन टेरिटरी को। देयरफॉर 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 हैज बीन पास्ड एंड आफ्टर सो मेनी years of entire discussion the issue has been resolved by making a 100 constitutional amendment 2015, and in 2015 this entire issue has been settled out. So I just need you to give कि आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर नहीं देता है सिसीड करने की। द एंटायर केस डिस्कशन इज जस्ट फॉर द पर्पस कि भाई ये केस इस वाले क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। जो आज हम इंडिया, ये जो इंडिया देखते हैं दैट इज़ द इंडिया। आई होप यू द इंडियन मैप इज़ विजिबल टू यू। जो आज हम इंडिया स्टेट जो ये देखते हैं, ये दिस इंडिया जिसमें 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपके पास में। ये जो हम स्टेट देख रहे हैं इसमें 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आपके पास, विच हैज़ द नेम हैज़ बीन मेंशन, द 4th शेड्यूल में मेंशन है सबके नेम, एंड द 4th शेड्यूल हैज़ बीन टॉक अबाउट द एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ इन द राज्यसभा, द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये आपको सीट्स के एलोकेशन के बारे में बताता है कि किस स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे राज्यसभा के अंदर में। तो 4th शेड्यूल में चेंज उसके इसलिए किया जाता है एंड 1st एंड 4th शेड्यूल साथ में ही आते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का टेरिटोरियल चेंज होगा या नेम चेंज होगा या टेरिटरी में कुछ भी चेंज आएगा, देन इट हैज़ अ रेपरक्यूशन और द एंटायर इफेक्ट ऑन आर्टिकल 4 ऑफ दैट। नाउ द वन इंपॉर्टेंट टॉपिक यू नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है वो हुआ कैसे। आज जो भारत का जो मैप है जिसमें हम पूरा देखते हैं स्टेट्स हमारे पास यूटीज़ हैं, वो हुआ कैसे, उसके देयर वाज अ एंटायर स्टोरी ऑफ दैट। 3 कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड। फर्स्ट SK धार कमीशन इन जून 1948, सेकंड JBP कमेटी दिसंबर 1948 एंड द थर्ड वन फैजल कमीशन जिसकी वजह से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, एंड द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14th August 1947। द पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस अ डे बिफोर us, and on 15th August 1947 we got independence. At that time the communal violence are so much heinous enough that because the Indian people have to be those who are belong to the Pakistan territory, they have to shift the entirely फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, उन्हें जाना पड़ा, और पाकिस्तान से जो हिंदूज थे उन्हें इंडिया आना पड़ा। दैट लीड टू अ कम्युनल वायलेंस एंड द एंटायर ब्रूचुअलिटी एंड द मेजर यू कैन से दैट द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का जो वायलेशन था ह्यूमन राइट्स का उस समय बहुत ही एपेक्स लेवल पे था वो, उस समय जो पार्टीशन हुआ था। तो वी हैव गॉन थ्रू द पार्टीशन इज जस्ट यू कैन सी दैट जस्ट कि भाई 1947 अगस्त में मिले, जब फ्यू मंथ्स बिफोर दैट हम लोगों की डिमांड बढ़ने लगी कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या स्टेट्स को फॉर्म करना सही है, क्योंकि वी हैव नाउ, अब हम आज़ाद हो चुके हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है अपना, और उनकी यूनियन जो टेरिटरीज़ हैं उनको स्टेट बनाने हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के नॉर्म्स वगैरह सबसे कंसीडर करने हैं। तो वी हैव टू बी मेक अ मैप, हमें अपनी कंट्री को टेरिटरी वाइज डिवीजन करना होगा, क्योंकि भाई इतनी बड़ी टेरिटरी है हमारे पास में, हमारे एथनिक डाइवर्सिटी है हमारे पास, मल्टी एथनिसिटी है हमारे पास, कल्चर की, ट्रेडिशन की, है ना, पीपल की। तो दैट्स वाई वी नीड टू बी टैकल ऑल दीज डिमांड्स को केटर करना है हमें, ऑल दीज डिमांड्स को फॉर दैट पर्पस। तो क्वेश्चन ये उठ रहे थे, द क्वेश्चन हैज़ बीन रेज कि क्या हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन करना चाहिए या नहीं। तो जब SK धार कमीशन कमेटी बनी तो उसने कहा नो, वी शुड नॉट बी फॉर्म द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें स्टेट नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज वी हैव द, आप उस इनका नो कहने का आंसर समझिए कि उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि भाई उस समय हम 1947 के जो कम्युनल वायलेंस के इशूज़ है उससे हम जस्ट वी हैवेंट बीन रिकवर्ड फ्रॉम दैट
दैट्स वाई, तो उन्होंने नो कर दिया। आफ्टर दैट अगेन क्वेश्चन रेज, तो दिसंबर में JVP कमेटी बनी जिसमें कि 3 मेंबर्स, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सर एंड पिताबी सीतारामैया जी, इन्होंने बनाए। इन्होंने क्या कहा, दैट इज ऑल्सो बीन रिजेक्टेड, इन्होंने भी इसी बात को रिजेक्ट किया, दैट वी शुड नॉट बी मेक द लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए, जो कि हेल्प करे आपको कोहेरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करे, क्योंकि लिंग्विस्टिक बेसिस होना है फिर से वही कम्युनल वायलेंस एंड ऑल दिस इशूज है। बट लेकिन ऑन अ फ्यू ईयर्स क्या हुआ, पोटी सीरानामू जो हैं उनकी डेथ हो गई, ही हैज़ बीन पास्ड, बिकॉज वो क्या थे, भूख हड़ताल पे चले गए थे कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को बनाया जाए, आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तेलुगु स्टेट में। तो आंध्र प्रदेश पहला तेलुगु स्टेट बनाया गया। दैट आफ्टर दिस सब एंटायर इवेंट के बाद हमने फिर फैजल कमीशन बनाई 1953 में, जिसमें 3 मेंबर्स थे आपके, फैजल अली, KM पानेकर एंड हृदय नाथ कुरुंज, या 3 members in this, and the State Reorganization Act 1956 has been passed and the 7th Constitutional Amendment 1956 has been made, जिससे पूरा जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, हाँ, जो आपका फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें चेंज किए गए एंड ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट आया। पहले फर्स्ट स्केड्यूल आपको ऐसा दिखेगा, जब ये पूरा इवेंट होने से पहले उसमें इस टाइप से था, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C एंड पार्ट D। 5 पार्ट हुआ करते थे उसके, 4 पार्ट हुआ करते थे उसके अंदर में। आफ्टर दैट जब हमने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना लिया तो उसमें सिर्फ पार्ट A और पार्ट B रह गया था, जिसमें पार्ट A में स्टेट्स बताए गए थे एंड पार्ट B में आपको यूटीज बताई, ओके, जो करंट में भी हमारे पास आज फॉलो है। इसमें क्या होता था, ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे इसके अंदर। इससे पार्ट 2 में आपके प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, और पार्ट 3 में जो चीफ कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ था उनके द्वारा हैंडल किए थे वो वाले होते थे, एंड इसमें लास्ट में अंडमान एंड निकोबार ये आता था, अंडमान एंड निकोबार। ये इस टाइप से आपको दिख जाएगा, ये पहले ऐसे हुआ करता था। उसके बाद जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने किया 1956 में, दैट मेक आर फर्स्ट शेड्यूल लुक लाइक दिस। सो नाउ द मैप इज दिस, यू कैन गो थ्रू विद दिस, यू कैन गो कि हमारे पास कौन कौन सी यूटीज़ हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, उनकी क्या क्या कैपिटल हैं, जस्ट गो थ्रू द बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इट कैन हेल्प यू आउट। एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ मच इंपॉर्टेंट कि भाई फैजल कमीशन में मेंबर्स क्या थे, उन्होंने क्या कहा था, and JVP. One more thing that you need to keep that in mind कि Fazal Commission said that we do not want to form the linguistic basis पे states को नहीं बनाना चाहते हैं, सॉरी, we can form the linguistic basis पे state को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, no issue with that, but you should keep that in mind, कि one state with one language नहीं होना चाहिए। इन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया था कि one state वन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, वन स्टेट शुड है, ओके। ये आपका वन स्टेट वन लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने रिजेक्ट की थी। ही रिजेक्टेड दिस, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था जो भी हम स्टेट फॉर्मेशन करें इट शुड बी मस्ट ऑन द बेसिस ऑफ administrative or the coherence of the administrative convenience, keeping in the mind the unity and the integrity of the country एंड फाइनेंशियल एंड रिसोर्सेज, कि भाई पता है हमने स्टेट्स बना दिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, भाई जब आप स्टेट्स का फॉर्मेशन करेंगे तो यू नीड टू एलोकेट द फंड फ्रॉम द सेंट्रल लेवल टू द स्टेट लेवल। तो फाइनेंशियल एलोकेशंस को, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री की, इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमें इन चीज़ का स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहिए, इधर इफ़ यू वांट टू डू ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस एज वेल टू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Okay, I hope you understand all these articles. Let me check if something has been
Okay, we will discuss with that later. Okay, now first one issue has been remain, that is Sikkim. I have discussed all the things. Now start with Sikkim. As you seen here, the one statement, Sikkim is an associate state which has been omitted. This article has been omitted. None of we do not need to think to discuss it, but let me discuss it because it is help you to get. सिक्किम जब ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे तो ब्रिटिश इंडिया जो था, तो भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे, तब भारत तीन टाइप के उसमें डिवाइडेड था. डिवाइडेशन जो था उसका 3 टाइप्स में था. एक हमारे पास ब्रिटिश इंडिया था, एक प्रिंसली स्टेट्स है, और कुछ ऐसे स्टेट है जिसको चीफ कमिश्नर या आप कह सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के द्वारा वो किया जा रहा था कंट्रोल. प्रिंसली स्टेट जो थे वो इन्हें इंडियन स्टेट्स कहा जाता था, जो कि आज के इंडियन स्टेट्स की डेफिनेशन से बहुत ही डिफरेंट होते हैं. दीज आर द स्टेट विच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी. यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश इंडियन स्टेट होते वहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे. देन फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट आती थी वहाँ पर. ओके, वहाँ फिर आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट आती थी. तो इन दैट केस सिक्किम जो था वो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, विच हैज़ बीन, वाई इट हैज़ बीन सिक्किम इज अ प्रिंसली स्टेट. तो लेट्स सी द मैप. सिक्किम की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है यहाँ पर. सिक्किम हैज़ बीन स्ट्रैटेजिक लोकेशन, यहाँ है सिक्किम. सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक. सिक्किम की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की चाइना से कनेक्टेड है, नेपाल से, इधर भूटान से. ये 3 डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्टेड है, जिसमें कि चाइना के साथ उसका ओपियम का ट्रेड होता था उस समय जब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे था. एंड इट हैज़ बीन अ मेजर सोर्स टू कनेक्ट टू ट्रेड विद द एंटायर चाइना एंड द अपर रशिया. चाइना के ऊपर रशिया है. यू विल गो थ्रू विद द वर्ल्ड मैप एंड देन दैट इज. तो सिक्किम चाइना से ट्रेड किया करता था पहले, तो इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक, और जो कि ब्रिटिश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट वाइज ब्रिटिश इंडिया जो थे, ब्रिटिशर्स ने सिक्किम के साथ एक प्रोटेक्टोरेट की ट्रीटी बना रखी थी कि भाई सिक्किम हम तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, यानी डिफेंस है आपकी, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स वी विल हैंडल आउट, बाकी आप अपना अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा. क्योंकि सिक्किम पे वहाँ पे किंग रूल किया करते थे. आफ्टर दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो वहाँ के सिक्किम के पीपल बिकम अवेयर अबाउट इट कि दे वांट कि भाई इंडिया अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, तो इंडिया में कुछ सोशल रिफॉर्म्स आएंगे, कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स आएंगे, है ना, डेवलपमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसके अंदर में, तो उन सभी का बेनिफिट्स हमें भी चाहिए. तो पर लेकिन वहाँ मुनार्क था, मुनार्क वो डजंट वांट दैट. तो मुनार्क ने कहा कि इफ़ आई वांट टू कंटिन्यू तो लेट्स एंटर इनटू अ. तो जहाँ का वहाँ का जो प्रोग्रेसिव ग्रुप था उसने क्या किया, उन्होंने राजा जो किंग डायनेस्टी थी उसको बोला कि लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियंस. तो इंडिया से उन लोगों ने क्या किया, एक अग्रीमेंट साइन किया जिसमें कि सिक्किम को एज अ प्रोटेक्टर स्टेट इंडिया के अंदर कंसीडर कर लिया गया था, और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दे दिया गया था. अब क्या जो एसोसिएट स्टेट्स का स्टेटस दिया गया है, दैट इज बीन कंसीडर्ड टू द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा. माई क्वेश्चन इज दैट, क्या उसे टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाएगा? यहाँ ये जो डेफिनेशन देगी इसका पार्ट माना जाएगा क्या वो स्टेट्स की कैटेगरी में? क्योंकि हमने तो एसोसिएट स्टेट का टाइटल दिया है, यूनियन टेरिटरी में आएगा या एक्वायर्ड टेरिटरी है? द आंसर इज दैट it will not consider the part of the territory of India because it is an associate state which doesn't fall in any of the category. ना तो हमने उसे एक्वायर किया, ना स्टेट बनाया, ना हमने यूटी बनाया. दैट्स वाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 2A इंट्रोड्यूस किया गया था कि हमने उसे एक एसोसिएट स्टेट का एक क्या दिया, स्टेटस दिया है. आफ्टर दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल डिबेट्स एंड वेरियस थिंग्स हैज बीन गोइंग ऑन. द स्टेटस ऑफ दिस आर्टिकल 2 हैज बीन रिपील एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1975 के एक्ट से दिस सिक्किम हैज़ बीन मेक इट अ स्टेट बना लिया गया और अखंड भारत का पार्ट बना लिया गया. तो दैट इज़ द एंटायर स्टोरी दैट वी नीड, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू नो यू दिस अबाउट, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेरिटरी. वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है और यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या आता है. दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस when the entire questions can be formed over these two words. Okay, I have covered the entire articles.
I have discussed a lot of things about in that. I hope you like all the entire things. If there are any doubt, you can put in the comment section. I will go with that and I will reply it to you. So just one thing you have to do, just go with the Indian map and go with the Indian states and union territories and their respective capitals, so you get a clear picture about the Indian state and their respective territories. I hope that is a quite bit difficult task sometimes to remember all these capitals, but it's if you're going through twice, then it will be done with you. Okay, I hope you like the session. So do not forget to subscribe the channel. Thank you.